और कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट प्रपोजल्स का स्टेट लेवल पे भी होता है इवैल्यूएशन और सेंट्रल लेवल पे भी इवैल्यूएशन होता है, और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक होता है देन दे आर एक्सेप्टेड फॉर implementation. Now, this process of evaluation of impact of any proposed developmental project on environment, this process itself has several steps or several sub processes, and what are those steps that we will discuss today. That is called the EIA process. So in the beginning it is written that EIA represents a systematic process that examines the environmental consequences of the development actions in advance. एडवांस इसलिए क्योंकि अभी प्रोजेक्ट जो है अप्रूव तो हुआ नहीं है, EIA इवैल्यूएशन के बाद ही अप्रूव होगा, तो ऑब्वियसली अप्रूव नहीं हुआ है तो अभी इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो अभी तो जस्ट प्रपोजल है। तो प्रपोजल जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए EIA जो है वो मैंडेटरी होता है। सो बेसिकली EIA इज टू मेक any developmental project not just economically developmental project but to have it as sustainable development project. And sustainable development itself means that it will not have any adverse effect on the environment or on the local stakeholders. Not only local stakeholders, I mean on any stakeholder, it will not have any adverse effect, and it will not have any adverse effect on the environment. Now, in this EIA process, which is systematic and examines the environmental consequence of development actions in advance, meaning that it is before the implementation of the project, the emphasis of a EIA is on prevention and therefore is more proactive than reactive in nature. So it's not like a reaction on the project proposal, but it's proactive. Proactive means that in advance we are trying to reduce any possible adverse effect of this developmental project on the environment. मतलब प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी ग्रांट भी नहीं हुआ है, और इसी समय उसका पॉसिबल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हम स्टडी करके समझ के और उसको मिटिगेट करने की पूरी कोशिश करते हैं एडवांस में, तो उस सेंस में ये प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मीन्स बिफोर, इवन बिफोर द प्रोजेक्ट हैज बीन implemented or started, we are being proactive, that in advance we are trying to mitigate any adverse effect on the environment. So it's proactive in nature, and it's not that something bad has happened to the environment and then we are trying to take care of it, उसको reactive बोलेंगे। तो प्रोएक्टिव का मतलब है कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी कुछ एनवायरनमेंट पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम पहले से ही ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि जिससे नुकसान ना हो। और रिएक्टिव का मतलब होता है जब नुकसान हो गया तब उसको हम फिर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिएक्टिव इन नेचर कहलाएगा। The EIA process involves a number of steps, some of which are as below. The first step is project screening. Okay, this entails the application of EIA to those projects that may have significant environment impacts. It is quite likely, however, that screening is done partly by the EIA regulations operating in a country at the time of assessment. So basically, project screening means to divide it in the three categories. Category A, B1 and B2, which we discussed last time, that is called as project screening.
to divide them into whether any EIA assessment is required or not, and if required, is heavy EIA evaluation required or only a moderate EIA evaluation is required. So project screening means dividing them into appropriate categories. Then scoping means कि आज की तारीख में जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, और फिर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो है हम कैसा फोर्सी करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या सुधार आएगा या क्या नुकसान होगा, उसको स्कोपिंग बोलते हैं। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट की मतलब उससे क्या नुकसान होने वाला है या क्या फायदा होने वाला है एनवायरनमेंट के टर्म्स में। स्कोपिंग में लिखा है दिस स्टेप सीक्स टू आइडेंटिफाई एट एन अर्ली स्टेज द की सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यूज from among a host of possible impacts of a project and all the available alternatives. So scoping means that you are trying to identify what is the condition of environment today, and then after the implementation of the project, will the environment be better or bad, and what are the positive and negative possible aspects of the project on the environment. And that is what is the scope of the what is the scope of the project with respect to environment. That is called as scoping. Then next is the consideration of alternatives. जो इसमें स्कोपिंग में भी लिखा है कि अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड। अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि जैसे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो मेथडोलॉजी लिखी है और जो उन्होंने लिखा है कि मेनली कि हाँ हम ऐसे करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था कुछ ऑल्टरनेटिव्स देने होते हैं कि हमारा मेन तो ये है कि इसको ऐसे करेंगे, लेकिन ये भी एक ऑल्टरनेटिव है कि मतलब इस स्टेप को ऐसे भी किया जा सकता है या ऐसे किया जा सकता है। तो जहां पे प्रोजेक्ट में पॉसिबल होता है कोई जो हमारा मेन है मेथड कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन कुछ अगर वहां पे ऑल्टरनेटिव की गुंजाइश है कि उसको ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है, तो उन ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना कि ऑल्टरनेटिव अगर हम लेके चलते हैं तो क्या उससे जो इनिशियली जो प्रपोज किया गया है उसके कंपैरिजन में क्या उससे एनवायरनमेंट में कम नुकसान होगा। मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिव इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि इफ द ऑल्टरनेटिव is better in terms of environment, it can be considered even if it involves little bit more cost on the side of the project, but if it makes the environment much better, then it can be considered. So basically that is the meaning of alternatives, that if any alternative maybe enhances the cost a little but the benefit is more in terms of sustainable development, then maybe one would go with the alternatives. So alternatives are considered at this stage, and same is there in the next step also, consideration of alternatives. This seeks to ensure that the proponent means जिसने propose किया है project proposal, उसको proponent कहेंगे, उसने propose किया है। This seeks to ensure that the proponent has considered other feasible approaches. So at least at this stage, EIA committee wants to see that the person has at least considered some alternatives and has given some alternatives which can be considered, including alternative project locations, scales, processes, layouts, operating conditions, and no action option. So these are the things where you look for alternatives.
like location may be here, maybe there, or maybe there. So what is the best location? Where has the proponent proposed to have it? But there are these also locations. So which one the committee feels is the most appropriate location? Then scales and processes means कि कितना large scale पे उनको बनाना है, कि small scale पे बनाना है, कि moderate scale पे बनाना है या करना है, और कितने process हैं उसमें, उन processes की efficiency क्या है, उन processes का layout क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ पे जो उनका एरिया है, जिस एरिया में प्रोजेक्ट किया जाएगा उसमें कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, that is layout, where which plant will be where, which step will be carried out where, and what will be the procedure that will be used. And operating conditions. Now in the alternatives, the operating conditions can vary. So maybe a particular step, if you do with one process, this is the operating condition, and if you do with another process or alternative process, then maybe the operating conditions are different. So the operating conditions can vary depending on the process or the alternative process. So all this is considered at this stage, कि क्या प्रोसेस प्रपोज किया है और क्या लेआउट दिया है, कि कहाँ पे कौन सा स्टेप कैरी आउट होगा, कौन सा प्लांट कहाँ पे लगेगा, और क्या उसमें कुछ ऑल्टरेशन करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है. सारे ऑल्टरनेटिव कंसीडर कर लिए गए हैं और जो बेस्ट है वही प्रपोज किया गया है. अगर जो प्रपोज किया गया है वो बेस्ट नहीं है तो कमिटी का काम है बेस्ट वाला बताना. ये इस स्टेप में करते हैं, थर्ड स्टेप में. फोर्थ स्टेप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट or development actions. That is the main thing, the main process, or the main object, what is to be done and how it is to be done. This step seeks to clarify the purpose and rationale of the project. मतलब क्या करना है, aim क्या है, क्यों बनाया गया है ये proposal, and understand its various characteristics, कि उसमें है क्या क्या करना है, including the stages of development, location and process. मतलब क्या एम है, क्या करना चाहते हैं, क्या गोल है, और उसमें कितने प्रोसेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं, कहाँ पे किया जाएगा, लोकेशन क्या है, और सारे प्रोसेस जो हैं वो ठीक ठाक हैं कि नहीं है, सारे ऑल्टरनेटिव्स वगैरह देख के ये बेस्ट है जो प्रपोज किया गया है. इसका इवेल्युएशन इस चौथे स्टेप में होता है. पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल बेसलाइन. बेसलाइन का मतलब होता है जहां से हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे मतलब स्टार्ट करते समय अभी जो है एनवायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स की क्या पोजीशन है, मतलब अभी हवा पानी लैंड वगैरह की क्या स्थिति है आज की तारीख में, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय एनवायरमेंट की क्या स्थिति है, वो एनवायरमेंटल बेसलाइन कहलाता है. दिस इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट of both the present and future state of the environment. So baseline actually means present state, and future state means after implementation of the project, what is what is predicted state of environment. In the absence, so what is the state of the environment now currently in absence of the project, taking into account the changes resulting from natural events and from other human activities. You see, you are evaluating the environment. Now we are constantly doing some activities and there are constantly some natural events which are happening,
तो मतलब जो नेचुरल कोर्स में जो आंधी पानी, रेनफॉल और ये सब जो है वो वहाँ पे जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है लोकल जगह, उसके अकॉर्डिंग, जैसे 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल में कितनी बार वहाँ पे बारिश का मौसम रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, तो उसमें एनवायरनमेंट ऐसे होगा। तो जो स्टेजेस हैं, मतलब नेचुरल इवेंट्स जो नोन है, उसके अकॉर्डिंग तो आप अंदाज लगाओगे ही कि 3 साल बाद क्या स्थिति होगी एनवायरनमेंट की। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी वहां पे चलती हैं, जैसे मान लो एयर क्वालिटी खराब है, ठीक है, और एयर क्वालिटी बेटर करने के हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट है ऐसा कि जिसमें एयर क्वालिटी भी बेटर होगी, ठीक है। अब वहाँ करंट स्थिति में जो है, करंट मतलब बेस लाइन डाटा में ये है कि अभी एयर क्वालिटी खराब है, वाटर क्वालिटी ठीक है, सॉइल क्वालिटी ठीक है, लेकिन एयर क्वालिटी जो है वो खराब है। अब खराब से 3 साल में और खराब हो जाएगी, क्योंकि कितनी इंडस्ट्री हैं आसपास, कितने लोग वहां पे रहते हैं, लोग वहां पे जो भी है चूल्हा जलाते हैं, ये है जाड़ों में लकड़ी जलाते हैं, जो भी है, तो 3 साल में और जितना डिटीरियोरेशन होने वाला है उसका भी कुछ जो है अंदाज आप लगाओगे, और फिर उसके साथ साथ आप देखोगे कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से 3 साल में एक्सपेक्टेड सुधार कितना है। तो दोनों चीज देखते हैं कि करंट सिचुएशन and predicted situation after the implementation of the project. So that is called as the environmental baseline data. Baseline data means current situation of air, water, land, etc., and the predicted situation of air, land, water, etc. after during the implementation of the project. And plus you take into account whatever are the natural environmental degradation, deterioration, etc., and degradation and deterioration based on the local population activities. All this together is called the environmental baseline data. So a description of this environmental baseline data, whether it is done in the project proposal or not, is the 5th step in the EIA process, that the committee checks whether you have given proper environmental baseline data or not. Then 6th step is identification of key impacts. This brings together the previous steps with a view to ensuring that all potentially significant environmental impacts, adverse and beneficial, are identified and taken into account in the process. अब ये जिस उससे मैंने दिया है इसमें थोड़ा डिटेल में स्टेप्स दिए हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप कोई वो शायद दूसरा मैंने एक पहले जो एक वो वाला यही जो EIA ऑब्जेक्टिव वाला PDF जो पहले मैंने अपलोड किया था, अब तुम आज अगर उससे कंपेयर करके देखोगे तो उसमें खाली 4 स्टेप दिए हैं EIA प्रोसेस के। तो ये तो डिपेंड करता है कि अब ये पूरा फुल फ्लेश्ड कोर्स है EIA का, वो जो दिया था वो किसी ऐसे बुक से दिया था which is not not completely on EIA. So what I'm trying to say is that if you look at the EIA process steps in a book that is purely on EIA, you will find a number of steps. But however, if you look at any other environmental chemistry or sustainable development book, maybe they give you only 4 steps, because the 4 main steps are screening, scoping, public consultation, and appraisal, which is given in that in the PDF from which I was teaching you last time, the EIA
व्हाट इज EIA, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA, उसी में देखोगे तो बाद में जो EIA रिपोर्ट के पहले स्टेप्स ऑफ EIA दिए हुए हैं, जहाँ पे कैटेगरी A, B1, B2 दिया है प्रोजेक्ट प्रपोजल्स का, उसके नीचे खाली 4 ही स्टेप दिए हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल, क्योंकि वो तो चारों मेन वाले स्टेप हैं। और अभी चूंकि ये पूरा कोर्स ही EIA का है, तो अभी जो हम स्टेप बता रहे हैं, हम ये जो है 10-12 स्टेप बता रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, मतलब मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो 4 मेन स्टेप हैं, और बाकी उनके सब स्टेप्स भी मिला के 10-12 स्टेप हैं, ठीक है। तो मेन 4 स्टेप, और अगर उनके और थोड़ा डिटेल में स्टेप्स देंगे तो 10 या 12 स्टेप हो गए, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट्स, जो कि इसमें छठा स्टेप है, उसमें ये है कि this brings together the previous steps and all potentially significant environmental impacts, adverse, beneficial, and that everything is taken into account in the process. तो छठा स्टेप जो है सिंपली ये है कि एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट्स, मतलब कि किस किस चीज का एक्चुअली पैरामीटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस स्टेप में, कि प्रोजेक्ट के किस किस पैरामीटर का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। सो एक्चुअल में इसमें लिखा जो भी है, बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट्स मींस टू आइडेंटिफाई which activities or which parameters in the project proposal actually would have an impact on the environment, क्योंकि हर चीज का तो environment पे impact नहीं होता है। So identification of those activities and those, those key things, key parameters which are actually going to have an impact on the project, that is in this sixth step, identification of key impacts, that which activities, which things in the project proposal are likely to have an impact, or which steps, which processes, which activities are likely to have an impact on the environment। तो वो जो भी 5 या 6 पैरामीटर्स हैं या स्टेप्स हैं या प्रोसेस हैं जिनका एनवायरनमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना है, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इन्हीं का जो है इम्पैक्ट आएगा, तो उन्हीं को मतलब ज्यादा ध्यान से देखना है। बाकी चीजों का क्योंकि हम EIA का कर रहे हैं इवेल्युएशन, तो हम हर वो चीज देखना चाहते हैं जिसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, इसलिए वो की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनका जो है एनवायरनमेंट पे लाइकली इम्पैक्ट आएगा, तो उन्हीं को ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। फिर 7th स्टेप में दिया द प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट्स, तो उसके पहले पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए, अब उनका पॉसिबल इम्पैक्ट, प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि प्रपोजल तो अभी जस्ट प्रपोजल है, अभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, तो क्या लाइकलीहुड है उनका इम्पैक्ट आने का, या क्या प्रिडिक्शन है कि क्या इम्पैक्ट आएगा, वो द प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट्स, वो जो है 7th स्टेप में आता है। This step aims to identify the likely magnitude of the change, that is impact in the environment when the project is implemented, in comparison with the situation when the project is not carried out। तो इस 7th स्टेप में ये है कि प्रोजेक्ट अगर होता है, अगर इसको हम ओके करते हैं और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसके बाद में एनवायरनमेंट क्या अच्छा अगर होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, खराब होगा तो कितना हवा पानी जो है वो खराब हो जाएगा। वो तो whatever good or bad direction, but this is prediction of good or bad effects, positive or negative impacts of the project
on the environment, predicted, because it's not been carried out yet, it's not been approved yet. So it's a prediction. अच्छा बुरा जो भी इम्पैक्ट उसका आने की संभावना है वो जो है प्रपोजल में मेंशन किया गया है या नहीं, वो 7th स्टेप में देखा जाता है कि ये मेंशन होना चाहिए प्रोपोनेंट की तरफ से, कि उसको क्या लगता है कि कितना अच्छा होगा इससे और कितना खराब होगा। 8th स्टेप है इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सिग्निफिकेंस, जितना हाई सिग्निफिकेंस आएगा उतने ही चांसेस हैं उसके फंड किए जाने के और अप्रूव किए जाने के। ऑब्वियस सी बात है कि एनी प्रोजेक्ट विच हैज मोर significance will be given more weightage and is likely to be approved and implemented and funded. So this evaluation of significance of the project is a very important thing. This seeks to assess the relative significance of the predicted impacts to allow a focus on key adverse impacts. Formal definition of significance is the product of consequence and likelihood. That is, significance is equal to consequence into likelihood. ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल के सिग्निफिकेंस देखने का, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने प्रपोज किया है वो तो यही कहेगा मेरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, इसका ये अच्छा इम्पैक्ट आएगा और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फंड किया जाना चाहिए और इसको अप्रूव किया जाना चाहिए। अब हम एक्चुअली अगेन लाइक क्वांटिटेटिव तरीके से हम कैसे बताते हैं कि किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है। अब सिग्निफिकेंस को ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है, जिससे सॉर्ट ऑफ उसको एक स्कोर दिया जा सकता है, या उसके लाइकली सिग्निफिकेंस को क्वांटिफाई किया जा सकता है। दिया सिग्निफिकेंस इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इनटू लाइकलीहुड। Now you see, nobody can say कि नहीं ये ऐसे ही होगा, तो लाइकलीहुड है कि हमारे हिसाब से हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसे ये प्रेडिक्शन है हमारा, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आने चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और इसलिए इसका वेटेज जो है वो हाई होना चाहिए और इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, इसलिए इसको ग्रांट किया जाना चाहिए और फंड किया जाना चाहिए और हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल दिया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने लिखा कॉन्सिक्वेंस इनटू लाइकलीहुड। नाउ कॉन्सिक्वेंस मींस सॉर्ट ऑफ चांस, या कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि जैसे जैसे जो है चीजें होएंगी, जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होएगा तो उसके चीजों के होने का चांस क्या है, काइंड ऑफ चांस हो गया, तो वो उसका एक पैरामीटर वो कॉन्सिक्वेंस हो गया। और लाइकलीहुड का मतलब है कि कितना लाइकलीहुड है कि की एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, कुछ डिजास्टर होने के चांसेस कितने हैं, या अच्छी चीजें होने के चांसेस कितने हैं, वो लाइकलीहुड है, या लाइकलीहुड ऑफ एडवर्स थिंग्स। सो consequence means the factor of chance and into likelihood. So the factor of chance and likelihood, the chance of good things and the likelihood of adverse things, this multiplied together gives you a quantitative value for the weightage of the project proposal or the significance of the project proposal. तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से है, but this is an interesting way of quantifying the importance of
any project proposal or showing the significance of any sustainable development project proposal. तो कुछ इस तरीके से जो है प्रोपोनेंट भी देता है और उसको EIA वाले उसको समझ के, अगर उनको लगता है कि जो प्रोपोनेंट ने दिया है सही नहीं है, तो वो अपने अनुसार इस तरीके से उस प्रपोजल के सिग्निफिकेंस को क्वांटिफाई करते हैं। फिर 9th स्टेप है मिटिगेशन, मतलब एडवर्स इफेक्ट का, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आपने जो है इवेलुएट किया consequences of good happenings and the likelihood of bad happenings, वो आपने जो है उसका थोड़ा सा इवेलुएशन किया, प्रिडिक्शन किया, और उसके बेसिस पे 9th स्टेप में proposed ways of mitigating that। तो इसी के जस्ट ऊपर हमने जो है वो क्वांटिफाई किया कि कितना अच्छा चांस है और कितना लाइकलीहुड है कोई मिस हैपनिंग का या ट्रेजेडी का, या जो है वो बैड कोई बैड इंसिडेंट्स का क्या लाइकलीहुड है, और दोनों को मिला के जो सिग्निफिकेंस आया और जो लाइकलीहुड आया एडवर्स चीजों का, उसके बेसिस पे अब जो है कि लाइकलीहुड एडवर्स चीज का लाइकलीहुड इतना है, तो हमको उसको अवॉइड करने के लिए, मिटिगेशन मतलब अवॉइड करने के लिए उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या अगर ऐसा होता है तो उस समय जो है हम क्या स्टेप्स लेंगे, उसके लिए प्रोपोनेंट ने क्या दिया है उसका इवेल्युएशन। इसी को एक्चुअली जो है जो मिटिगेशन लिखा है इसी को DMP या EMP समझ लीजिए। मतलब ये इस 9th स्टेप में वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज द डिजास्टर मैनेजमेंट plan, that is DMP, and EMP is environment monitoring plan or environment management plan, which is also very similar. There is a slight difference. Actually what is said in the 8th point, according to that this is more like DMP, that is disaster management plan, that you evaluate the chances of any disaster or the chances of any mishappening, and then you lay out certain steps that will be immediately carried out in case of any mishappening, and if the proponent has given any plan for that, so that is the reason that DMP or EMP is a mandatory part of EIA प्रोसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एकदम मैंडेटरी होता है कि जिसने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उसमें होना चाहिए, या फिर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्लान जो लोग देते हैं उसका मतलब होता है कि दैट रन्स कॉन्टिन्यूअसली। यू सी दिस इज द डिफरेंस, EMP will run continuously, that continuously throughout the implementation of project you are taking certain steps for the management of the environment so that the environment is not harmed। तो वो तो EMP कहलाएगा जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम एनवायरनमेंट खराब ना हो उसके लिए जो कॉन्स्टेंटली जो स्टेप्स ले रहे हैं वो EMP कहलाएगा, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग प्लान की। मतलब थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम एनवायरनमेंट की ऐसे जो है वो कंटिन्यूअस हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वो EMP कहलाएगा। और DMP वो प्लान होता है जिसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इमरजेंसी में स्टार्ट किया जाता है, लेकिन वो भी होना चाहिए। तो एक DMP तो हर हालत में होना चाहिए,
ईएमपी जो है वो डिपेंड करता है, एक्चुअली ईएमपी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो B2 कैटेगरी में आ रहा है जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है एनवायरनमेंट पे, तो फिर ईएमपी उसमें होगा ही नहीं। उसमें क्या कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डीएमपी उसमें भी होगा कि इन केस एनी मिसहैपनिंग अकर्स, क्योंकि मान लो केमिकल की इंडस्ट्री है, कहीं पे कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं तो बॉयलर ही फट गया है, तो उस समय हमको क्या करना है, एक इमीडिएट एक्शन प्लान होना चाहिए। जो इमीडिएट इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है वो डीएमपी कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, विच इज टू बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड and we should be always ready for implementation in case of disaster. So mitigation, जो ये 9th step है, mitigation is looking at the project proposal whether it contains EMP and DMP or not. EMP if required and DMP is mandatory. DMP must be there. Then 10th step is the public consultation and participation. This now in this detailed process, the public consultation comes at the 10th step. However, in the in the brief EIA process, it is the 3rd step. मतलब स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, उसके बाद सीधे पब्लिक कंसल्टेशन आ गया, जबकि ये बीच वाले जो हैं वो डिटेल्ड इवेल्युएशन वाला है, जैसे जैसे कमिटी करती है। और बहुत ब्रॉडली एकदम जो है वो जस्ट हो गया स्क्रीनिंग, कि मतलब पहले तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना, स्कोपिंग जस्ट जनरल देख लिया कि क्या इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला, और उसके बाद सीधे पब्लिक कंसल्टेशन। वो बीच वाला पूरा स्किप किया हुआ है उसमें, तो वो जो है सूटेड नहीं है। डिटेल्ड डीआईए प्रोसेस में ये सारे स्टेप आते हैं, तो जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन जाके 10th स्टेप में आता है। पब्लिक कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन का मतलब है कि इमीडिएट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या व्यू है, उनसे कंसल्ट किया गया है कि नहीं, कि उनको ऑब्जेक्शन है उस प्रोजेक्ट को वहां पे कैरी आउट करने में, उनको कोई ऑब्जेक्शन है कि वो खुश हैं उससे, उसका इवेल्युएशन और उसका कुछ प्रूफ उसमें लगाना होता है, कि मतलब लोकल लोगों को जहाँ पे हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करेंगे, वहां पे जो लोग अभी जो करेंटली रह रहे हैं, जो इमीडिएटली उससे अफेक्टेड होंगे, उनको उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, या दिक्कत है तो उनका ओपिनियन क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, या उसमें क्या वो लोग क्या चेंजेस चाहते हैं, और गुड और बैड, वट एवर ओपिनियन दे हैव, द इमीडिएट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें दिया, दिस एम्स टू एश्योर द क्वालिटी, comprehensiveness and effectiveness of the EIA, as well as to ensure that the public's views are adequately taken into consideration in the decision making process. तो इसमें पहले इसमें दिया है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी, कॉम्प्रहेंसिवनेस, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इसको करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए तो है ही है, और कॉम्प्रहेंसिव बनाने के लिए इन द सेंस कि जैसे सीबीए में तो कोई अगेन, इसीलिए EIA इज बेटर एज कंपेयर टू CBA, बिकॉज इन CBA यू जस्ट लुक एट द cost and the benefit, and then you okay a particular project, and there is none of this evaluation, and you don't take anybody's opinion कि किसी को अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, वो सब CBA में कुछ नहीं होता है। इसमें ये है पब्लिक कंसल्टेशन में कि हाँ, दिस पब्लिक कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स is to ensure that the local people where it is being carried out, and in general people are not offended and they are happy with the project, or if they want any particular changes, then they can be thought, we can think whether we should do those changes or not। तो मतलब एटलीस्ट ओपिनियन लेते हैं, देखते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, और
अगर कोई उनका व्यू पॉइंट कभी कभी अच्छा ओपिनियन भी आ जाता है, तो अगर लगता है कि नहीं किसी का बड़ा अच्छा ओपिनियन है वहां पे कि इसमें जरा सा ऑल्टरेशन करके जो है दे विल फील बेटर, तो फिर उसको किया जा सकता है। सो दिस इज टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर करने के बाद अगर उन्हें अच्छा न लगे तो क्या फायदा। और अगर पहले से उनका ओपिनियन ले लिया जाए और अगर उनको कुछ चेंजेस चाहिए वो रेडली किए जा सकते हैं तो कर दिए जाएंगे। तो पब्लिक का व्यू पॉइंट, उनका ओपिनियन लिया गया है कि नहीं, और किस टाइप का ओपिनियन आया है वो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल में शो करना मैंडेटरी होता है। और उसमें अगर पब्लिक का ओपिनियन अच्छा होता है तो नेचुरली उससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है कि इनके सपोर्ट में जो है इतने स्टेक होल्डर्स हैं and everybody wants it to be implemented, so it should be implemented. So the more public opinion is there in the project proposal and they are good recommendations of the stakeholders, it makes the decision making simpler. उससे डिसीजन लेने में आसानी होती है। Then next step is the environmental impact statement presentation. ये लास्ट वाले, ये जितने स्टेप्स हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 10th स्टेप में 9th स्टेप से नीचे के सारे स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके ऊपर वाले चाहे कभी कभी जैसे याद नहीं रहे तो एक में हो गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मिटिगेशन ऑनवर्ड्स जितने स्टेप्स हैं ये सारे एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिटिगेशन, फिर ये वाला पब्लिक ओपिनियन वाला, पब्लिक कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। EIS की इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल की एक तरीके से समरी होती है बहुत ही शॉर्ट में। और जब कमिटी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो सबसे पहले EIS ही देखते हैं खोल के, क्योंकि उससे पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक ओवरऑल जो है आइडिया लग जाता है। और उसके बाद जो स्टेप उनको डिटेल में देखने का लगता है वो तो डिटेल में देखते ही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट इज लाइक the entire project proposal in a nutshell or the summary. So this is a vital step in the process. If done badly, much good work in the EIA may be negated. तो इसमें 2 लाइन में लिखने का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बहुत कायदे से बहुत ध्यान से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अच्छा प्रपोजल था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी जो अच्छाई थी वो EIS से समझ में नहीं आ रही थी, EIS को उतना ढंग से लिखा नहीं गया था कि उसकी जो प्रोजेक्ट की जो अच्छाइयाँ थी वो EIS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, और उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट हो गया। तो उस सेंस में दिया है कि मच गुड वर्क इन द EIA मे बी निगेटेड इफ EIS इज रिटन बैडली। तो अगर स्टेटमेंट भद्दे तरीके से लिखा गया था, ध्यान से नहीं लिखा गया था, उसमें प्रोजेक्ट के जितने गुड पॉइंट्स थे वो उससे समझ में नहीं आ रहे थे, कमिटी मेंबर्स ने खाली EIS पढ़ा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जो है वो उसको किनारे रख दिया, तो हो सकता है कि आपका एक्चुअल में वास्तव में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और केवल EIS ढंग से ना लिखा होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। इसलिए EIS should be written very properly and it must show the good points of the project. Then review. अब ये स्टेटमेंट तक हो गया सब।
उसके बाद में एक पूरे उसका रिव्यू एंड देन डिसीजन. सो रिव्यू इज सिस्टमैटिक अप्रेजल, क्योंकि जो जैसे एक्सपर्ट कमिटी अप्रेजल जो लास्ट टाइम बता रहे थे, अप्रेजल मतलब दैट इज द मेन इवेल्युएशन. तो स्टेटमेंट तक देख लिया, फिर रिव्यू करने का मतलब है आपस में डिस्कस कर लिया, और रिव्यू करने के बाद में फिर डिसीजन लिया. सो रिव्यू इज द systematic appraisal of the quality of the EIS as a contribution to the decision making process. तो रिव्यू का मतलब ये है कि जो भी प्लस माइनस मिटिगेशन के लिए पॉइंट्स या मॉडिफिकेशन के लिए पॉइंट्स, रिव्यू का मीनिंग है जो भी कमिटी मेंबर्स ने पूरा इवेलुएट करने के बाद जो पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं उन पे डिस्कस करना आपस में, वो रिव्यूइंग प्रोसेस हो गया. And then finally decision making. At this stage decisions are made by the relevant authority of the EIS, including consultation responses together with other material considerations as to whether to accept, defer or reject the project. तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो बिना किसी मॉडिफिकेशन के एक्सेप्ट कर लिया जाए. डिफर का मतलब होता है कि कुछ मॉडिफिकेशन मांगा है, कुछ समय बाद उसको फिर से इवेलुएट करके सोचेंगे, वो डेफरमेंट हो गया. और तीसरा हो गया उसको रिफ्यूज करना या रिजेक्ट करना. तो एक हो गया एक्सेप्टेंस, एक हो गया रिजेक्शन, और तीसरा हो गया मॉडिफिकेशन या डेफरमेंट. तो तीन ही चीजें होती हैं, उन्हीं तीन में से एक डिसीजन लिया जाता है. या तो एज सच एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप उसको कर सकते हैं, फंड कर दिया, या फिर एकदम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये फंड करने के लायक नहीं है, इसको नहीं किया जाएगा. और डेफर कर दिया या मॉडिफाई करा लिया, मतलब कि कुछ और एनवायरनमेंट के बैड एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए कुछ प्रपोज किया है, या फिर कहीं पे ऑल्टरनेटिव प्रोसेस उन्होंने सजेस्ट किया है, या ऑल्टरनेटिव लोकेशन सजेस्ट किया है, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो मॉडिफाई करके रीसबमिट करिए, फिर से उसका रीइवैल्यूएशन और डिसीजन होगा. अब जब सारा डिसीजन हो गया और उसके बाद में प्रोजेक्ट जब चालू हो गया, तब आता है पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, कि तब एक कॉन्टिन्यूअस जो मॉनिटरिंग जो चलती है, वो मतलब रैंडमली समय समय पे जो है वो उसका निरीक्षण करके देखा जाता है कि जैसे जैसे प्रपोज किया गया था वैसे ही वैसे चल रहा है, कि कहा तो था कि ये करेंगे और हो नहीं रहा है. तो वो एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग, पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, मतलब जब डिसीजन हो गया व्हेन द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, तब उसकी जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो चल रही है वो पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग है. This involves the recording of outcomes associated with development impacts after the decision to proceed with the project. It can contribute to effective project management. मतलब वही मैनेजमेंट तो है ही है कि प्रोजेक्ट को जो जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ओके कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तब टाइम टू टाइम उसका उसकी मॉनिटरिंग, जिस कमिटी ने उसको ओके किया था वही कमिटी मेंबर्स उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे कि जो जिस प्रोजेक्ट को ओके किया था, इम्प्लीमेंट हो गया, उसमें जो है एवरी 6 months 4 months उसमें किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो मॉनिटरिंग. और लास्ट आता है ऑडिटिंग. ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग में डिफरेंस ये है कि मॉनिटरिंग थोड़ा जल्दी जल्दी होती है, जैसे 4 महीने 6 महीने पे मॉनिटरिंग, और ऑडिटिंग जो है वो साल में एक बार होती है. ऑडिटिंग इज जस्ट वंस अ ईयर. दिस फॉलोज मॉनिटरिंग एंड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग actual outcomes with predicted outcomes and can be used to assess the quality of predictions and the effectiveness of mitigation. It provides a vital step in the EIA learning process. ये ऑडिटिंग वाला तो पूरा एक अलग चैप्टर ही है,
जो यूनिट 1 में लास्ट में है, इसके बाद में कराएंगे ऑडिटिंग वाला। तो ऑडिटिंग तो अपने में एक पूरा है ही है, चैप्टर है ऑडिटिंग का, डिटेल में प्रोसेस भी कराएंगे। तो ऑडिट तो ईयरली होता है, उसमें तो हर चीज चेक होती है, उसमें तो जाके एक्चुअली वहां पे जो जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा होता है वहां पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और एक्चुअल देखते हैं कि किस प्रोसेस की कितनी एफिशिएंसी बताई थी, एक्चुअल में कितनी आ रही है, क्या इफ्लुएंट निकल रहे हैं, उनको कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ डंप कर रहे हैं, कितना एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग कितनी चल रही है ना, ये सारा कुछ जो है। और जो है वो कितने एडवर्स इफेक्ट्स क्या प्रिडिक्टेड थे, क्या आ रहे हैं, लैंड वाटर वो सब, क्वालिटी चेक एटसेट्रा, मशीन्स का चेक, वो सारा कुछ जो है वो ऑडिटिंग में होता है। वो सेपरेटली सबसे बात करते हैं, स्टाफ से, लेबरर्स से, वर्कर्स से, स्टेक होल्डर्स से, हर एक किसी से फीडबैक लेते हैं और सब मिला के सारे प्रोसेस चेक करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं, मशीन्स की एफिशिएंसी चेक करते हैं, वो सब मिला के वो लंबा चलता है, वो पूरा ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये इन टोटलिटी दिस इज द एंटायर EIA प्रोसेस। और इसी एंटायर EIA प्रोसेस का एक जो है फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट भी जो है वो अपलोड किया है। अब आज जो है आज जो ये इतने स्टेप्स जो बताए हैं, ये तो पूरे टोटल मिला के एक्चुअली 15 स्टेप है। तो ये 15 स्टेप को पढ़ लो पूरा, और ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, और इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा और ब्रीफ करके और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में नेक्स्ट टाइम लिखवा देंगे। और जो आज भेजा है वो फ्लो चार्ट, उसको ये इन स्टेप्स को पढ़ते जाना और फ्लो चार्ट में देखना। फिर वो फ्लो चार्ट को नेक्स्ट टाइम पहले फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन्हीं स्टेप्स को हम फिर से थोड़ा सा सिंपलर लैंग्वेज में और थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखवा देंगे, बिकॉज दिस एंटायर EIA प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तब उसके बाद में फिर EIA